الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معزز حاضرین گرامی، میرے دینی اور ملی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی کے بعد درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دین جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، یہ ویسے ہی ہے جیسے دین کو عملی طور پر سمجھنا۔ عملی طور پر آپ قرآن تبھی سمجھ سکتے ہیں، عملی طور پر آپ اسلام تبھی سمجھ سکتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خصوصیات پڑھیں گے اور سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کہلاتی ہے۔ ہماری بھی ایک سیرت ہوتی ہے، ہمارا بھی چال چلن ہے، اور ہم بھی اپنی چرت سے پہچانے جاتے ہیں، اور ہماری شخصیت کا تعارف ہماری سیرت سے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیونکہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے پوری امت کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ راہبر اور رہنما کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اور آپ کی سیرت کی ضرورت کنہیں ہے یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ ضرورت سب کو ہے، چاہے کوئی بچہ ہو یا جوان ہو، چاہے کوئی بوڑھا ہو یا
जो है चाहे कोई बूढ़ा हो या मर्द हो, औरत हो, समाज का हर तबका मोहताज है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना राहबर और रहनुमा बनाने की। खुसूसियात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की यह है कि आपकी सीरत इंतहाई महफूज तरीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सहीह तरीन है, महफूज भी है और सही भी है। इसमें अल्लम गल्लम बातें जमा नहीं की गई हैं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को निहायत ही बारीकी के साथ और बड़ी दिक्कत के साथ महफूज किया गया है। कोई हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का गैर महफूज नहीं है, जबकि दीगर अंबियाए किराम जो आए और उलुल आज़्म अंबियाए किराम, अंबिया और रसूल चले गए दुनिया से, लेकिन उनकी सीरत अगर आप जमा करने जाएंगे तो एक दो सफहात में उनकी सीरत जमा हो जाएगी। सूफ़े इब्राहिम कहाँ है, सूफ़े मूसा आपको कहाँ नजर आ रही है? जो अनाजील हैं, जिनके मुरत्तिबीन और मुअल्लिफीन के बारे में शदीद तौर पर इख्तलाफ पाया जाता है, वहां से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत नहीं ले सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत अगर देखेंगे तो वो भी चंद सफहात पर मुनहसिर है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की खासियत यह है कि बड़ी बारीकी से इसे महफूज किया गया है। हजरत बर्रा इब्न आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु निहायत मारूफ सहाबी हैं, और ये इनके बारे में ये भी जानिए कि ये वही नौजवान हैं जिन्होंने जोशे जिहाद में बदर के मैदान में हथियार लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ में खड़े हो गए थे। आपकी मासूम से नन्हे बच्चे पर नजर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अभी जिहाद के लायक नहीं हो, तुम्हारी उम्र अभी खेलने की है, अभी तुम्हारी उम्र माँ बाप के साथ जिंदगी गुजारने की है, अभी तुम्हें जिहाद की इजाजत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मैदान बदर से वापस कर दिया था। तो जो है बर्रा इब्न आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ सीखी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सिखा रहे थे और मैं उसे रट रहा था, मैं उसे दोहरा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया वह बिनबी कल्लज़ी अरसलत, तो मैंने वहां ये कह दिया कि वह बिरसूली कल्लज़ी अरसलत, माने में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल भी थे, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। नबी वो होता है जिसको नई शरीयत नहीं दी जाती है, बल्कि पिछली शरीयत की तबलीग के लिए और जो चीजें मर चुकी हैं उनके जिंदा करने के लिए नबी को भेजा जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी थे और रसूल भी थे, लेकिन यहाँ बारीकी देखिए, सीरत की हिफाजत का सलीका देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं वो भी नबी कल्लज़ी अरसलत, और सहाबी कहते हैं वो भी रसूल कल्लज़ी अरसलत, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, वो भी नबी कल्लज़ी अरसलत। ये जो है सेगा याद करो, ये सेगा महफूज किया जाएगा, और जहां मैंने नबी कहा है वहां रसूल नहीं लगाया जा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी शादी कब हुई है, आपकी किस खातून से शादी हुई है, शादी के मामलात कैसे तय पाए हैं, और उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदैन के बारे में भी पूरी तफसीलात महफूज हैं कि किससे शादी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदैन की कब शादी हुई, किस खानदान में शादी हुई, पूरी तफसीलात महफूज हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन को महफूज किया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो बिअसत से पहले, नबूवत से पहले की जिंदगी है, उसके एक एक गोशे को महफूज कर लिया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत महफूज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत महफूज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात महफूज हैं, कोई हिस्सा छोटा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसीलिए कहा जाता है कि आपकी सीरत निहायत महफूज तरीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इंतहाई खुली है और खुली किताब की तरह पूरी उम्मत के सामने मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी की वो तफसीलात जो आम तौर से बयान नहीं की जाती हैं, उन्हें भी मुअर्रिखीन ने लिख रखा है, उन्हें भी सहाबे किराम ने याद कर रखा है और उम्मत के लिए नकल किया है। या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार अल्लाह ताला ने डांटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक ताला ने वही के जरिए से तंबीह फरमाई और कहा कि ऐ नबी, कि आपको कहां से ये अख्तियार मिल गया है कि जिसे मैंने हलाल किया है
उसे तुम हराम कर रहे हो, जिसे मैंने तुम्हारे लिए जायज रखा है उसे तुम अपने लिए नाजायज करार दे रहे हो। अपनी बीवियों की रजामंदी चाहते हो, उन्हें खुश करना चाहते हो। मुफस्सिरीन लिखते हैं इस आयत करीमा के शान नुज़ूल के बारे में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि कई अज़वाज मुतहहरात थे, मस्जिद नबवी के अतराफ में उनके छोटे छोटे मकानात और हुजरे बने हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असर की नमाज पढ़ लेते थे तो इनकी जियारत के लिए जाते थे और अपने अपनी बीवियों के घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर बैठते थे, खैर खैरियत मालूम करते थे और जो भी थोड़ी मोड़ी ज़ियाफत होती थी, जो भी जिसके पास दस्तयाब होता था वो आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अगले घर चले जाते थे। ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा के घर एक दफा कहीं से शहद का तोहफा आया हुआ था और जाहिर है अगर शहद आई हुई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद आने वाले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होने वाली है, तो सबसे ज्यादा हकदार तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनके लिए खुसूसी शरबत का एहतमाम किया जाता है और उसे बनाया जाता है। जाहिर है शरबत बनाने में, उसे पीने और पिलाने में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल कई दिन तक चलता रहा। कुछ अज़वाजे मुतहहरात को ये बात नागवार लगी कि हमारे यहाँ 5 मिनट बैठते हैं और वहाँ 10 मिनट क्यों गुजारते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल पर उन्हें एतराज हुआ। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये प्लानिंग की और कहा कि ऐसा है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब इस काम से रोकेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने का सही तरीका यही है कि हम कह दें कि जो आप शरबत पी पी के आते हैं उससे मगाफिर की बू आती है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना महकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू जो है गुलाब जैसी खुशबूदार हुआ करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के जब कानों में ये बात आती है कि आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौंकते हैं और सोचते हैं कि मैंने क्या खाया है, मैंने आज क्या पिया है। याद आता है कि ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के घर मैंने शहद की शरबत पी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहद कर लेते हैं कि बात के बाद से शहद में नहीं इस्तेमाल करूंगा, शहद में नहीं पीऊंगा। मेरे मुंह से अगर बू आ रही है तो मैं शहद को अपने ऊपर हराम करार देता हूँ। अल्लाह तबारक तआला ने इन्हें इस पर तंबीह फरमाई। उसे भी सहाबे किराम ने महफूज कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दफा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक जो है एक बीवी के ताल्लुक से ये बात कही, इशारे में कही, कहा हस्बुका सफिया, हस्बुका सफिया कदा व कदा तानी अन्हा फसीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बात कही, कहा सफिया के ताल्लुक से यही काफी है कि उनका कद छोटा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये बात आती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि जबान से बुराई नहीं की थी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, बस सिर्फ इशारा किया था। इशारा भी मना है, इशारा भी आप जो है गीबत है, इशारा भी इस्लाम के अंदर अगर किसी के शान में गुस्ताखी हो रही है तो वह मना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खफा हो जाते हैं और कहते हैं कि लक़द क़ुल्ति कलिमतन लौ मुजिज़त फिल बहरी लमजज़फ़हा, कि अगर तुमने आयशा ऐसी बात मुंह से निकाली है, इतनी जहरीली बात तुम्हारी जबान से निकली हुई है जो जेब नहीं देती है तुम्हें, कि अगर वो तुम्हारी एक बात समंदर के पानी में डाल दी जाए तो पूरा पानी गदला हो जाएगा, समंदर का पूरा पानी जहरीला हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबीह का यह अंदाज था। इसे भी मुअर्रिखीन ने लिख रखा है, इसे भी मुअर्रिखीन ने बयान कर रखा है। आप सुनते रहते हैं हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ दोस्तों के साथ तशरीफ फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों के साथ बैठे हुए हैं, आपके सहाबे किराम मौजूद हैं। किसी और घर से, किसी और बीवी के घर से जियाफत के लिए कोई अच्छी डिश बन के आ जाती है। होता यह है कि अगर किसी के घर मेहमान आता है तो कोई भी सोचता है अपने घर का फर्ज कि चलो मैं भी उसमें शामिल हो जाऊं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि मेरी मौजूदगी में ये मेरे मेहमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर आए हुए हैं और किसी और के घर से कोई तोहफा आए और खाने की चीज आए, उन्हें अच्छा नहीं लगा। खादिम के हाथ पे हाथ मारा और खाना प्लेट समेत गिर कर बिखर जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं और उसके बाद टूटे हुए बर्तन को समेटते हैं, बिखरे हुए खानों को चुनते हैं और उज्र पेश करते हैं कि गफ़ारत उम्मुकुम,
तुम्हारी माँ को गैरत आ गई है, बुरी नहीं है, तुम्हारी माँ है, उनका रुतबा भी आपने फरामोश नहीं किया, कहा तुम्हारी माँ है और उन्हें गैरत आई हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बेहतरीन उसके बाद फैसला किया, कहा जिसने बर्तन तोड़ा है अब उसके घर सही सालिम बर्तन तुम्हारे घर से जाएगा, इसलिए कि नुकसान उसका हुआ है, भरपाई तुम्हें करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामले को खत्म कर दिया, कभी आप खफा नहीं हुए। इस वाक़े को भी उलमाए किराम ने, सहाबे किराम ने इसे भी महफूज किया और इसे सीरत का हिस्सा बनाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ऐसी सीरत है जो एक इंसान की सीरत थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख्तियारात भी इंसानी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे अमल भी इंसानी था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में जो दिल धड़कता था वो भी इंसानी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों में जो ख्वाहिशात पैदा होती थी वो भी इंसानी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन को इंसानी तकाजे लाहिक होते थे, इंसानी बीमारियां, इंसानी आवारिज लाहिक होती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा जाता था तो चोट आपको भी लगती थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी किया जाता था तो आपके बदन से भी खून बहता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई ईजा दी जाती थी, जब परेशानी में मुब्तला होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाया करते थे, जब कोई कम लाहिक होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भी बह जाया करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हा सा बेटा है, उसे दफन कर रहे हैं और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बह रही हैं, आप रो रहे हैं। सहाबे किराम ने अजीमत के खिलाफ इसे समझा और सवाल किया, कहा आप रो रहे हैं, बच्चे के इंतकाल पे आप अश्क बहा रहे हैं, आप आंसू बहा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरा लख्ते जिगर था, मेरे जिगर का टुकड़ा था, आज वो रुखसत हुआ है तो इन्नल ऐन लतज़मा व इन्नल क़ल्ब लयहज़न व इन्ना अला फ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम वला नक़ूलु इल्ला मा यर्दा रब्बुना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हैरत की कोई बात नहीं है, मेरा लख्ते जिगर मुझसे रुखसत हुआ है इसलिए मेरी आंखें बह रही हैं, मेरा दिल गमगीन है और हम तुम्हारी जुदाई पर इब्राहिम इंतहाई परेशान और अलम में मुब्तला हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपने मुंह से कोई ऐसा जुमला नहीं कहेंगे जिससे हमारा रब नाराज हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई खौफ लाहिक होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी डर जाया करते थे, खौफ में मुब्तला हो जाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते हैं, कांपते हुए घर आते हैं, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कि खदीजा मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे डर लग रहा है, मेरे बदन में कपकपाहट है और मुझे अपनी जान का खतरा लाहिक हो रहा है। ऐसा मंजर मैं देखा हूं आज कि इसके पहले मैंने कभी ये मंजर नहीं देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्सा आता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सुर्ख हो जाया करती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो जाया करता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से के आसार जाहिर हो जाते थे और जब कभी खुश होते थे तो चेहरा गुलनार हो जाया करता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमकने लगता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई फिक्र लाहिक होती थी तो आप भी अंदर से परेशान हो जाया करते थे। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, लअल्लका बाखिउन अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहादल हदीस असफा। अल्लाह तबारक तआला ने आपको तंबीह की, कहा इतना मत परेशान हो जाइए, अपनी कौम के ईमान के लिए इतने फिक्रमंद मत हो जाइए कि अपने आप को हलकान कर लें और अपनी ही जान दे दें। ऐसा लग रहा है कि उनकी हिदायत के चक्कर में आप अपने आप को हिलाक कर लेंगे, अपने आप को ज़ाय कर लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत हमारे सामने है वो इंतहाई अमली थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तस्बीकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अच्छी बातें करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, निहायत मीठी मीठी नसीहतें करने वाले एक ढूंढो हजार मिलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मीठी नसीहतें नहीं करते थे बल्कि अमल करके दिखाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल जो दावती दावत का मिशन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत होते हैं, अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद, अपने मिशन को मुकम्मल करने के बाद, तो जजीरतुल अरब के हर हिस्से में इस्लाम की सदा गूंज रही थी, नारे तकबीर की आवाज वहां से बुलंद हो रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत कामयाबी के साथ 23 साल की निहायत कम मुद्दत में अपना मिशन मुकम्मल कर लिया है।
23 साल की मुद्दत कोई बड़ी मुद्दत नहीं होती है। आप सोचते होंगे कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का कारनामा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों की तादाद मौजज़ात के जरिए से नहीं थी। इतनी बड़ी तादाद फौज दर फौज जो इस्लाम में दाखिल हो रही थी, आपका अखलाक देखकर, आपका किरदार देखकर मौजज़ात से जो है मौर्रिखीन लिखते हैं कि शायद ही कोई आदमी मौजज़े से ईमान लाया हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मौजज़ा होता किसके लिए है? मौजज़ा तो उन्हीं के लिए है जो अपनी आंखों से दीदार कर रहे हों, जो वहां मौजूद हों, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बाहयात हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने मौजज़े के वक्त हाजिरी दी हो और देखा हो, सिर्फ मौजज़ा उनके लिए है, लेकिन आपका लाया हुआ दीन क़यामत तक के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत दलीलों से साबित करनी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा लोगों ने देखा, लेकिन उसकी वजह से ईमान नहीं लाए। यहां तक कि चांद को 2 टुकड़े होता हुआ देखा है। उन्होंने 2 टुकड़ा ऐसे नहीं कि मामूली सा फर्क आया हो, बल्कि सहाबे किराम कहते हैं चांद ऐसे 2 टुकड़ा हो गया कि ये बीच में बिल्कुल दूसरा पहाड़ ही हमें नजर आ रहा था, और इंतहाई फासले पर एक हिस्सा दिख रहा है, दूसरे फासले पर दूसरा हिस्सा दिख रहा है। मौजज़ात देखने वालों ने मौजज़ात देखे, लेकिन उसका भी इनकार किया। कहा ये तो जादूगर हैं, ये तो हमारी नजरों को बांध दे रहे हैं, ये तो चांद को भी 2 टुकड़ा कर दे रहे हैं। आपको जादूगर कहकर टाल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाए लोग, जज़ीरतुल अरब में जो मुसलमान हुए, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखा था, आपका किरदार देखा था। नबी पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत को उन्होंने दिलो जान से कबूल किया और उसे देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई गज़वात मुसल्लत की गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस भी गज़वे में शरीक हुए, किसी में मुसलमानों की तादाद ज्यादा नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कभी किसी जंग में असलहे और जो है वसाइल की फरावानी नहीं थी। हर गज़वे में तादाद हमारी कम होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वसाइल कम होते थे, लेकिन हर गज़वे में अल्लाह तबारक तआला ने इन्हें फतह अता फरमाई और अल्लाह तआला ने हक को गालिब किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार और अपने अखलाक के जरिए से लोगों के दिलों में दीन की हक़ानियत को कायम किया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की जो एक 5वीं खुसूसियत है, वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इंसानी शोबों को, तमाम इंसानी शोबों का इहाता करती है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी में, एक इंसान की जिंदगी में जितने मराहिल आते हैं, जितने स्टेप आते हैं, सबकी नुमाइंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक ऐसे नौजवान का आईना हमारे सामने पेश करती है जो इंतहाई सच्चा था, जो अमीन था, इंतहाई अमानतदार था, जिसे उसके समाज के लोग अमीन कहकर पुकारते थे, जिसे सादिक और सादिक कहकर पुकारते थे, जिसके फैसले को, जिस नौजवान के फैसले को जो है उस कबीले के इंतहाई बुजुर्ग और इंतहाई मोतबर लोग भी रद्द नहीं कर सकते थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हाल था। आप ऐसी सीरत पेश करते हैं जो एक इंतहाई निडर और बहादुर की सीरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमी के हालत में बड़े हुए हैं। बाप का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था और माँ भी रुखसत हो जाती है कुछ ही बचपन ही में, निहायत कम उम्री ही में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के जिम्मे आपकी परवरिश चली जाती है, फिर वो भी चले जाते हैं और उसके बाद आपके चचा अबू तालिब की परवरिश में आ जाते हैं। इन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने मदद की निहायत बहादुरी के साथ और निहायत अजीमत और इस्तिकामत के साथ। लेकिन एक वक्त आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोग साथ छोड़ दे रहे हैं, लोग आप पर ईमान नहीं ला रहे हैं, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आपका इस्तेहजा किया जा रहा है, आपकी मदद की प्लानिंग की जा रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके चचा बुलाते हैं और कहते हैं, भतीजे अपने बाप पर इतना बड़ा बोझ मत ला दो कि जिसे वो उठा ना सके। अपने चचा के कांधों का लिहाज रखो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत मेरे कांधों पे ला दो। अभी फला लीडरान आए थे, फला आदमी आए थे, कुरैश के मुअज़्ज़ज़ लोग आए हुए थे, ऐसी ऐसी बातें कहकर गए हैं, आंख दिखा के बात कर रहे थे, जिनकी जुरात नहीं थी कि तुम्हारे बाप के चेहरे पर नजर टिका सकें। आज मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे, धमकी देकर गए हैं और तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता है कि अब ये सहारा भी उठने वाला है, लेकिन आपने बहादुरी दिखाई। आपने कहा, चचा जान आप कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए, मेरे एक हाथ में सूरज लाके रखते हैं लोग,
एक हाथ में चांद लाकर रख दिया होते ये लोग, और उसके बाद कहें कि मैं अपने मिशन से एक कदम पीछे हट जाऊं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा, या तो फिर अल्लाह तबारक ताला मुझे अपने मिशन में कामयाब करेगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें बात मिलती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे सरबराह ममलकत की सीरत हमारे सामने पेश करते हैं जो इंतहाई मुखलिस और खैरखा हुआ करता था, जो अपनी रियाया का गम अपने दिलों में रखता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीले मुदर के लोग आते हैं। ये कबीले मुदर के लोग इस्लाम तो ले आए हैं, निहायत गुर्बत की हालत में जिंदगी गुजर रही थी, बदन पे कपड़े नहीं थे, पाँव में चप्पल नहीं है, लेकिन उनके गर्दन में उनकी तलवारें हमायल हैं, उनके गर्दन में उनके हथियार लटके हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नजर पड़ती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेताब हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागते हुए अपने घर में जाते हैं। आदमी जब जरूरत किसी की पूरी करनी होती है तो सबसे पहले नजर उनकी अपने घर पे जाती है। अज़वाजे मुतहहरात के घरों में जाते हैं, लेकिन शायद वहां जरूरत इनकी पूरी नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को बुलाया, कहा बिलाल लोगों में ऐलान करा दो, वअज़्ज़िन फिन्नास, लोगों को जमा करो मेरे सामने। बिलाल आते हैं और जो है उसके बाद जो है निदा दी जाती है, तमाम मुसलमान जमा हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहां खुतबे पे मिंबर पे तशरीफ लाते हैं, हमदो सना बयान करते हैं, और उसके बाद इन्फाक की फजीलत की तरगीब फजीलत बयान करते हैं, और फिर अपने साथियों से कहते हैं कि मेरे दोस्तों, अगर तुम्हारे पास जो भी वसाइल मौजूद हो, किसी के पास कपड़ा है कपड़ा लाके हाजिर कर दे, किसी के पास गल्ला है गल्ला लाके हाजिर कर दे, यहाँ तक कि अगर उसके पास खजूर के कुछ दाने हैं तो वही दाना ही लाकर हाजिर करे। सहाबा किराम ने फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से लब्बैक कहा, और थोड़ी ही देर में आपने देखा कि जो है कपड़ों का एक अंबार जमा हो गया है, ढेर इकट्ठा हो गया है, एक तरफ गल्ले का ढेर इकट्ठा हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर फरमाते हैं कि जिसने भी अच्छी चीज की इजाद की है, शुरुआत की है, तो उसे उसके करने का सवाब तो मिलेगा ही, और कयामत तक जब तक उस पर अमल होता रहेगा उसे उसका सवाब मिलता रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन शौहर की हैसियत से भी हमारे लिए आइडियल और नुमाइंदा जो है मिसाली हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। आपने फरमाया कि तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो अपनी बीवी बच्चों के लिए बेहतरीन हो, और देखो मैं अपने बीवी बच्चों के लिए बेहतरीन हूँ। बेहतरीन होने की बहुत सारी मिसालें हैं, लफ्ते जिगर है, नूरे नजर है, फातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अपने ससुराल से आती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाती हैं। आप चारपाई पे अपने घर में बैठे हुए हैं, बेटी पे नजर पड़ती है, फौरन उठ जाते हैं, इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं मरहबा या बिनती, मरहबा यानी खुशामदीद हो मेरी बेटी, तुम आई हो मेरे घर पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह पे उन्हें बैठाया, बड़ी मोहब्बत के साथ। दोस्ती का भी हक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर अदा किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी उम्र में फरमाया, कहा मैंने अपने दोस्तों के तमाम दोस्तों के हुकूक अदा कर दिए हैं, जिसने मेरे ऊपर जितना एहसान किया था उससे कहीं बढ़कर भी मैंने हक अदा किया है, लेकिन मेरा एक दोस्त बाकी है जिसका एहसान मैं नहीं चुका सका हूं और शायद चुका भी ना पाऊं, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों, अपने दोस्तों का हक मुख्तलिफ अंदाज में अदा किया है। मदीने, सही मुस्लिम की रिवायत है कि मदीने के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने रियाया, अपने दोस्तों के ताल्लुक से जिम्मेदारी देखिए कि एक शोर सा उठता है और लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सब सोए हुए थे, लेकिन जाहिर है सहाबा किराम भी इंतहाई निडर थे, हथेली पे जान हमेशा रखते थे। जैसे शोर सुनते हैं फौरन घोड़ों पे नकीलें कसी जाती हैं, हाथों में तलवार लिए जाते हैं और उस आवाज की तरफ भागते हुए सहाबे किराम जाते हैं। लेकिन क्या देखते हैं कि जहां से शोर शराबे की आवाज आई थी, जहां से जो है खतरे की आवाज आई थी, उसी जानिब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्लह हालत में वापस आ रहे हैं। आपके चाहने वाले परेशान हो गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों में पालने वाले बेचैन हो गए, और उसके बाद भाग के आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे दोस्तों जाओ आराम से अपने बिस्तरों पर सो जाओ, मोहम्मद अकेला तुम्हारे दुश्मनों को भगा के आ रहा है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। अल्लाह तबारक तआला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम।